गवर्नमेंट होती है वो उन बच्चों को सपोर्ट नहीं करती कि तुम आगे बढ़ो, वह उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते पढ़ने के लिए। आई एग्री विद यशु कि करप्शन की वजह से पॉवर्टी और इलिटरेसी बढ़ती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हर एक ट्राई करती है कि हमारे बच्चे बड़े से बड़े, हर एक स्कीम्स आती हैं, मगर वो क्यों नहीं लोगों तक पहुँचती, क्योंकि करप्शन होता है। लोग पैसा खाने के लिए बीच में बैठे होते हैं और जिस जगह पर जितना पैसा चाहिए होता है आधे से ज़्यादा खा लेते हैं। तेरे रोड डेवलप्स नहीं होंगे तो बेसिकली तेरा स्कूल्स भी डेवलप नहीं होंगे। मेन रीज़न ही रोड्स का होता है। रोड्स के ऊपर तो तेरे को भी पता ही कितना करप्टेड लोग बैठे होते हैं, बड़े से बड़े पॉलिटिक्स पैसा खा रहे होते हैं। और वो पैसा किसका खा रहे हैं? तेरे डेवलपमेंट का खा रहे हैं ना, तेरे स्कूल्स का पैसा खा रहे हैं, तेरे रोड का पैसा खा रहे हैं, तेरे हॉस्पिटल का पैसा खा रहे हैं। और करप्शन की वजह से जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई लिखाई में उनको भी छोड़ना पड़ता है, जाके अपनी स्टडीज को छोड़ना पड़ता है। There is a like in medical who crack NEET exams but they do not get in seats in college, in medical college because of the corruption. The people who have much more money, they pay the money to get the seat, but if the people who are very much skilled and have much knowledge, they cannot able to get seats in medical colleges. So I think corruption. I also agree with Yeshu, but the one point which I don't like that Yeshu said constitution is not made properly. Constitution is not the main point. The main point is that the thinking of the people. If people think that we should pay money much more, then our child can go there, but they can't see the students who do many hard work for going there. They have much more skills. They only think about their child, and I think that constitution is not wrong. But they try to skill now by opening the schools and education. I am not saying that. I am not in favor of that constitution is not made properly. Well, I agree with the Arjun. I think that though corruption is a major issue, I agree with that. But the more important issue is that our education system in India is not good. Well, for the corruption, like the system is changing. I would like to give the example of direct benefit transfer, wherein during the COVID time, using the Prime Minister Jan Dhan accounts, 27,000 crore rupees of money was directly transferred to the 11 crore beneficiaries, poor beneficiaries. So the system is changing. With the more digitalization, I think the corruption can end. But the more important point of the reason why India is not developed is because of the education system. Well, if the people are well aware of their rights, it will happen with the help of education system. If the people are able to read, write, and use the technology better, if they are aware of their rights, so definitely they can question the government. They can question the government. They can put the videos on the social media, or they can sign the petitions. So in this way, somehow we can control the corruption, because with the education, the awareness of the people and the knowledge of the people, it will become better. Furthermore, with the better educational quality, with the more skills that we can provide to the children in the school, the problem of the unemployment plus other social evils can also solve. With the better skills, they will be able to get the good jobs that will further eradicate the poverty, and it is the most fundamental say quality or the virtue of the human beings, as said in the Sanskrit that Vidya Dhanam Sarv Dhanam Pradhanam, that is knowledge, the truest wealth of all is the knowledge. So if we can improve the education system in India, I think most of our social problems, they will be solved. बोलो काउंटर करो मेरे को, बोलो कुछ तो बोले भाई। सर आई थिंक मेन रीजन वाज द पॉपुलेशन, मतलब क्यों डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जॉब्स की रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है, फिर स्कूल में मतलब जो बच्चे को भेजते हैं उसमें उसका लेवल भी हाई हो गया स्टडीज़ का, उसमें मतलब स्टडीज का लेवल हाई हो गया, स्टडीज एक्सपेंसिव हो गई है, एंड या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड, एक्सपेंसिव हो गई स्टडीज, एक्सपेंसिव हो गया। यस, और क्योंकि पॉपुलेशन से क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ गई है बट जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो उन पर बर्डन आता है ना सोचने से। मेन रीजन करप्शन ही है, क्योंकि एक इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, और चाइना इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है, और क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है क्योंकि वहाँ पे करप्शन नहीं है। अगर कोई स्कूल करप्शन के पैसे बन रहा है तो ये तो माना जाएगा कि जो वो फीस ले रहे हैं उसमें करप्शन तो होगी। जितने तो गवर्नमेंट स्कूल में भी तो हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल में देख हो सकती है करप्शन, क्यों देख जो किसी से गवर्नमेंट मनी भेजेगी, ठीक है, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए, वो अगर स्कूल प्रॉपर्ली यूज नहीं
ठीक है, अपने पास बचा के रखेगा, या फिर जो मील के लिए वो मनी वगैरह भेज रहे हैं वो अगर वो पूरा यूटिलाइज ना करें, बच्चों को ऐसे सिंपल फूड दे दें, तो उसमें तो करप्शन है। वो जो एक मैंने पॉइंट मैं भी ऐड ऑन करना चाहूँगा, ऐसे मेरे माइंड में आ गया। लाइक कि आप लोगों में से अभी किसी ने बोला था, जशु ने बोला कि जो मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पर पैसे लेके सीट्स दी जा रही हैं, राइट, और जो एक अच्छा क्वालिटी वाला बच्चा वो नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। तो अगर टेक एन एग्जाम्पल कि अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हो गए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब इतने तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी नहीं है हमारे पास कि सारे के सारे बच्चे वहाँ पर पढ़े, तो उसके लिए भी फिर ऐसा कुछ हो जाएगा रिजर्वेशन टाइप, रिजर्वेशन इन द सेंस कि जैसे आप लोग एनडीए क्रैक करके एक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, एनडीए जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पर भी ऐसे होगा कि आप एक टेस्ट क्रैक करो और आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चले गए, ठीक है। और जिसके पास पैसा होगा, ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है, जिसके पास पैसा हो वो पैसा दे के गवर्नमेंट सीट ले ले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, राइट। तो देयर इज प्रो एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। बट मेन रीजन करप्शन ही है मेन रीजन करप्शन है। जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ लोग होते हैं मतलब पैसे देके जॉब्स ले इनको देखिए अपनी बात में यूज करता हूँ। क्योंकि हर गांव में डेवलपमेंट के लिए मतलब ग्राम पंचायत होते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप बच्चों को डेवलप करो, उनको स्पोर्ट्स का सामान आता है, पीछे से पैसे आते हैं कि आप बच्चों को खिलाओ और कंडक्ट करो छोटे छोटे इवेंट्स गांव के अंदर, ताकि बच्चों में एक जज्बा आए कि वो स्पोर्ट्स में भी जा सकें। और इंडिया का नाम तो वैसे ही बड़ा करना होता है उनको, क्योंकि जैसे कि हर एक सरकारी स्कूल में, हर सरकारी स्कूल को पर ईयर कुछ ना कुछ पैसे दिए जाते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, मगर वो उनकी तरफ पहुंचते ही नहीं क्योंकि करप्टेड लोग बीच में बैठे होते हैं। सड़कें बनने के लिए पैसे दिए जाते हैं, अब जहाँ जहाँ पे तुम्हारे घर हैं सबके वहाँ पे सड़कें बनी हुई है ना, पर ऐसे भी तुमने जगह देखी होगी जहाँ पे सड़कें ही नहीं बनी, तो ऐसा थोड़ा है कि उधर सड़कें बनने की गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आया है, मगर वो करप्टेड लोगों ने खा लिया होगा। और बट मेन पॉइंट इज दैट कि हम उस करप्शन को कैसे बंद कर सकते हैं, बंद तो हम लोगों को करना है ना, वी आर द यंग ब्लड्स। डिजिटल ट्रांजैक्शन आ गई है आजकल, अगर वो कोई कंट्री डेवलप हो रही है तो उसको ये भी देखना कि हम जो मनी ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है, वो बीच में कहीं भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एक न्यू स्कीम के लिए डिजिटल स्कीम, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम वो पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर उस बंदे को कर सकते हैं जो एक मेन हेड है, जो मतलब पूरे इंस्टीट्यूशन को देख सकता है, जिसके ऊपर ट्रस्ट है पूरा, तो वो एक मतलब एक पूरा हो सकता है जिसकी वजह से करप्शन कम हो सकता है। आज के टाइम पे किस पे ट्रस्ट करेगा, जिस पे तू ट्रस्ट करेगा वही करप्टेड निकला। क्या पता है जिसके पैसे है उसके आगे जो है वो सब करप्टेड है। क्या बच्चों के जिसको पैसा दिया हो वही करप्टेड निकला। तो इसके लिए एंटी करप्शन टीम भी होती है जिस सबको देखती है, मगर वो भी अच्छे से काम नहीं करती क्योंकि उसमें भी करप्शन तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाएं वो बताओ, आइडिया बताओ। हम सभी को ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा अपनी राइट्स के थ्रू कि हमको क्या राइट्स हैं, हमारे इधर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आता है क्या क्या नहीं, और गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी उनके स्कीम्स में कि हम कैसे कैसे काम करते हैं। कैसे लानी है? ट्रांसपेरेंसी मतलब कैंप्स, वो भी तो फिर एजुकेशन उसको के प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, एक उनको कैंप्स लगाने पड़ेंगे कैंप्स लगा के बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या स्कीम, वो भी स्टूडेंट ही करेगा ना। अगर स्टूडेंट जैसे तुम बोल रहे कि वो कैंप्स करेगा नहीं, अगर स्टूडेंट मेन स्टूडेंट नहीं होगा गवर्नमेंट स्कूल को, फिर तू कैसे करेगा? एजुकेशन नहीं होगा। कैंप स्टूडेंट्स होना लगेगा कैंप। तो अगर बेसिकली तू बोल रहे स्कूल में मिड डे मील वगैरह नहीं पहुंचे, स्कूल की बोनी होनी, वो स्कूल के बच्चे लगाएंगे, कोई बाहर का नहीं लगाएगा। हाँ, तो तो बस उस पे वो कंप्लेन कर सकते हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या मिल रहा है, कि क्या क्या हमारे लिए क्या क्या आ रहा है और क्या क्या हमको नहीं मिल रहा है, उनको ये बताना चाहिए। और कैसे पता चलेगा कि अगर उनको कोई बताएगा कि उनको जब कोई बताएगा ना कि हमारे पास हमारा ये राइट है मगर हमको मिल नहीं रहे हैं, फिर ही वो आगे जाके कंप्लेन करेंगे ना। अगर कोई ऐसी बात नहीं, पूरा पॉइंट हो रहा ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं करना। उसको कंप्लेन करेंगे तो वही करप्टेड। इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? जरूरी थोड़ा ना आप वीडियोस हर वगैरह बंदा बना लो, corruption नहीं है, आप हर ऐड बंदा लो, corrupted नहीं है। आइडिया डाल लो, आप चीजें देख लो, इतना मतलब एसएमएस पढ़ना जरूरी नहीं है ना, सॉल्यूशन भी दो साथ में। जो आज तक जो बैंक चल रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वो जरूरी नहीं है वो हर करप्टेड है। कई देख ले तू, मतलब कई स्कूल्स ऐसे हैं या फिर कॉलेजेस वगैरह ऐसे हैं जिनके ऊपर हर ट्रस्ट है बंदे को, वो उधर भेजते हैं अपने लोग। जैसे अब देख ले कोई भी स्कूल है जिसके ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है, तो वो पहले उसकी पूरी देखते हैं, पूरा मतलब स्कूल को देखते हैं कि कैसा है ये वो, तो उससे पता लग जाता है कि स्कूल में कुछ है या नहीं। वो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड पता लग जाता है कि ये करप्शन है या नहीं इसमें। टॉपिक फॉर ईडी क्या था? टॉपिक क्या था ईडी का? मेन रीजन फॉर नॉट डेवलप। तो हम सारे तो करप्शन पे बात कर रहे हैं, सारे पॉइंट करप्शन पे आ गए, तो और भी तो पॉइंट है
यार वही बोलो तुम तो जीडी के टॉपिक से बाहर निकले। और जैसे कि सरकारी स्कूल की जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, दिल्ली के सरकारी स्कूल देख ले Yes. और वहाँ पे पंजाब में देख लीजिए, ऐसा थोड़ा है कि उधर पैसे मिल रहे हैं, इधर पैसे नहीं मिल रहे, पैसे तो हर जगह मिलते हैं काम करने में, बस वो लगाए नहीं जाते। और दिल्ली के अंदर करप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उधर स्ट्रिक्टनेस बहुत है, और स्ट्रिक्टनेस इधर भी होनी चाहिए ताकि करप्शन कम हो सके, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। अब जैसे कोई करप्शन आजकल तो वैसे पकड़ते नहीं, तो छोटे छोटे पुलिस चौकीज पे देख ले, होता है ना, बोले नहीं जाओ, इवन अगर हम लैंड बाय भी करने जाते तो वहाँ पर भी पैसे ले रहे हैं, करप्शन। कोर्ट के अंदर भी पैसे देते हैं। करप्शन बस ये बोलेगा, बाकी सारा तो अपना और पॉइंट सोचो कि व्हाई डज नॉट करप्शन बस ये बोलेगा। Illiteracy can be the main reason because if a person is educated well enough that he knows that he is doing wrong and he shouldn't be doing the same thing and he shouldn't corrupt and shouldn't do wrong with the people and shouldn't do wrong to the country, and he should be aware of his rights, that he can do good with his own rights without corrupting anyone or without doing any unfair means. So education can be a pro in for reducing corruption. I'm agree with you शिवानी, but अब तू सोच कि और तू इलिटरेट है, इसको मत बोलने दो ना, क्यों बोलने दे रहे हो? बोलो इसको इंटरप्ट करो कोई बीच में, बहस करो इससे। केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और तू पैसे देगी कि मेरे को जीतना है, अब चाहे वो तू सरकारी वकील को ही देगी और तू पैसे देगी, उसके अंदर मैं मानता हूँ कि तू इलिटरेट है और फिर तेरे को वो हो रहा है, मगर देख जहाँ पे तेरी राइट्स की बात आती है, जहाँ पे तेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या चाहिए। That's what I'm saying. A person should be well educated, that he should be aware of his own rights, and he shouldn't let anyone else take his rights or make him down or let anyone do wrong to himself. अब एक सोसाइटी के अंदर मान ले ऑन एन एवरेज बस सबसे नहीं बोलना और बोलो। There are more issues in India like health issues, right? Poverty. Many more, right? Poverty, illiteracy, right? Women empowerment, right? Like facilities. I think another reason for India is not developed country because of unemployment. The many people are unemployed because they are not getting better educations. So this can be also a reason for India is not developed country. तब से ये बोल रहे थे कब से मैंने कोई इस बार नहीं, इस बार नहीं। जैसे तूने बोला कि एजुकेशन है, तो क्योंकि जब मैंने जब पहले बोला था कि जो इंडियन डेवलपमेंट में एजुकेशन में जाते हैं जो स्कूल I supported your point. I did not say that. ये नहीं करना अपना पॉइंट उस लॉजिक के साथ बोलना, कभी ऐसे मत बोलना वहाँ पे भी, ठीक है? अपना पॉइंट लॉजिक सपोर्ट करना है। और I think the main reason why India is not developed because we haven't made our economic policies well. Like at present we are working on the infrastructure projects. Like we have Gati Shakti plan, which says to invest more than 1 lakh crore rupees in the Indian infrastructure. So when we will have a good infrastructure, like at present we have dedicated freight corridor in the western sector as well as the eastern sector. So this will give a great infrastructure push to the to our country and to attract the more investment from the foreign countries. Since more investment and the FDI will flow into the country, more job opportunities will be there, and more people will get employed. So I think if the government make good economic policies in the country, so country will get a great boost and can be highly developed. I think one is facilities, some in village. So, but to make our बिल्कुल इनको बोलो हाँ। we should we have, if we have to make our economic development more, we should have the person should be literate, he or should be employed person, then he can increase his or her the economic section. So the person who are making our economic policies, they are literate. Not everyone in the country is illiterate. So our concern with the illiteracy is to literate the person who are not literate and to get the maximum benefit. But the person who are making the economic policies, they are literate and they are rather helping the person who are illiterate. By bringing the more investment in the country, they will create the more job opportunities. More money will flow into the homes, and the person will be able to say literate their child, or they can do their own skill development course. So in this manner, by a good economic policies of the country, more investment flowing, more job opportunities, the country can be highly developed. So
I think facilities in village there are government don't provide facilities to everyone. उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करके उनकी बस बनी होती है और जो पुअर होते हैं उनके पास फैसिलिटीज पहुंचती नहीं हो। जैसे अभी पीछे गवर्नमेंट ने जो पुअर पीपल थे उनके लिए बाथरूम वगैरह ऐसी फैसिलिटीज वो की थी, वो भी किसी किसी को मिली थी, किसी को वो भी नहीं मिली थी। तो उसका रीजन वही आ रहा है फिर उसका पॉइंट करप्शन। I see illiteracy because when a person is illiterate, he isn't aware of his right. So, for example, if there was a person who is illiterate and is aware of his right, so can't he fight the system? He can definitely fight the system. He can respectively put his letter or say complaint against the respective officials in the department. And when such letter is there, and then the department is forced to take the corrective measure. So, I think the main reason here is the illiteracy. Corruption can be fighted with the help of illiteracy. Giving the personal examples, like we all know that when we buy our gas cylinders, so we have to pay the MRP. We don't have to pay extra delivery charges. At times, some of you might order that they ask you for the extra delivery charges, but that is illegal. That money has to be paid by the company to the contractor. So customer need not have to pay that extra labor charge. So a person who is more literate, who is more aware, so he can stop such a small corruption. Well, a corruption, it is a corruption of at least say around 20 to 50 rupees. We can stop such corruption. So person who is more better educated, more aware. So definitely the point of corruption can be reduced in such a manner. My point is So in areas the person are poor, they don't know what is the price of this and they pay or buy cylinder gas and मतलब कि जो उसका चार्ज होता है वो सब कर देते हैं, बट जो पढ़े लिखे होते हैं वो उनको वो मतलब कि वो उसी जो ऐसे उसकी एमआरपी जो सर ने बताया कि एमआरपी वगैरह होते हैं वो उनको कम करते हैं। जब जैसे पोर होते हैं वो खरीद लेते हैं, उनको पता नहीं होता कुछ, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन होती है पीछे से उनको पता नहीं होता कि इसका रेट वगैरह क्या चल रहा है। और बेसिकली ये बोला जाता है कि एजुकेशन जो है वो इंडिया का जो डिपेंड नहीं है। इलिटरेसी भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि इंडिया डेवलप नहीं है, क्योंकि देखो जैसे कि एक इंसान है अगर वो इलिटरेट है उसको इतना तो पता होता है कि एमआरपी जितनी आज के टाइम में बता रहा हूँ, पहले नहीं आज के टाइम में इतना तो पता होता है कि जितनी एमआरपी दी है उसके हिसाब से सामान लेना। तो अगर ज़्यादा का भी होगा तो वो उसका आगे आर्गूमेंट करेगा जरूर, मगर ऐसी भी बहुत सी चीज़ें होती है मार्केट में जिसके ऊपर एमआरपी नहीं होती, जिसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, बढ़ता घटता रहता है। तो अब जैसे कि मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, मान लो वो चीज़ 10 रुपये की मिल रही है और आज से 5 दिन बाद वो 15 की हो जाती है और अब मैं इलिटरेट हूँ, अब मैं उसके साथ लड़ रहा हूँ कि नहीं ये मेरे को 10 की चाहिए, तो वो भी एक मेन रीज़न नहीं हुआ ना। और एक इंसान लिटरेट है तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने की बिक रही है। अब ये भी नहीं है कि वो चीज़ अगर बढ़ गई है तो वो उसके साथ लड़ने लगे, इसलिए भी लिटरेसी ज़रूरी होती है कंट्री के लिए। क्योंकि और जैसे कि अब तुम मान ले एक इंसान है वो सामान खरीद रहा है, अगर वो अगर उसकी डिमांड कम मतलब उसका प्राइस कम है मगर अगर शॉपकीपर से ज़्यादा का बेच रहा है तो कैसे इंसान को पता चलेगा कि वो सामान उतने का, उसके लिए भी लिटरेसी चाहिए होती है। अरे इसी वजह से अगर कंट्री का लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी, करप्शन भी कम होता है। लिटरेसी की वजह से करप्शन भी कम होता है। और जैसे कि देख लिए अगर करप्शन कम हुआ तो ऑटोमेटिकली जो टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक कंट्री के अंदर ब्रिजेस बन रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए पैसा आ रहा है और वो प्रॉपर तरीके से लग रहा है, अब तुम दूसरी कंट्रीज में क्यों जाते हो घूमने के लिए? क्योंकि वो वेल सेटल्ड है, एकदम फिनिश फाइन। कनाडा जाता है ना, अमेरिका जाता है ना, दिखती है ना कितनी साफ कंट्री है इंडिया। क्यों साफ है? इंडिया भी तो साफ हो सकती है, क्योंकि अब तो मान ले साफ करने तक के लिए इतने पैसे लगाती है गवर्नमेंट की, उन्होंने बंदे एम्प्लॉय किए होते हैं साफ सफाई के, वो नहीं काम पे आते हैं नहीं कुछ करते हैं, मगर फिर गंदगी तो रहेगी ना। अब वो तेरे को इतना पता होना चाहिए ना कि इधर हमारे उधर बंदे लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो वो आते क्यों नहीं? और वो नहीं आते तो कंप्लेन कर, वो तो तू तभी कर पाएगा ना अगर तू अच्छे से पढ़ा लिखा होगा। तो I agree with him. Like if in the country we have less corruption, it also attracts the foreign investment. Because the company is sure that if he will enter into the Indian market, he won't have to pay some extra bribe or money to the foreign investor. So naturally, country which has a good infrastructure, less corruption, so it is more inviting to the foreign investment, which again will bring in more job opportunities and reduce the illiteracy as well as the poverty in the country.
I think the another reason for India is not developed country is that the things which we are using, it's the majority things are from other countries, like made in China. Like the shoes we are wearing is from like USA and all other countries, and many less things are which is made in India, and India is have very much less MNCs in other countries. So I think this can be another reason that India is very less developed country. इंडियन गवर्नमेंट को अगर आप कुछ बोल बैठना है और बैठना है तो सीधे बैठो, कैसे बैठो, सीधे बैठो। जैसे तुमने बोले कि जो बाहर की कंट्रीज हैं वो वेल डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन अच्छी है, और यहाँ की जो वहाँ के बच्चे हैं वो बिल्कुल ऐसे उनको हर एक फैसिलिटी मिल रही है जो उनको चाहिए, और एजुकेशन भी मिल रही है। जहाँ इंडिया की बात आती है, जहाँ यहाँ पे कोई ऐसे नहीं, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं पहुँची, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको ऐसे सपोर्ट कर देते हैं कि वो मेन रीजन नहीं है। क्या इंडिया के अंदर ही ऐसे एनवायरनमेंट है, पूरी वर्ल्ड के अंदर कहीं और ऐसा नहीं होता। Politics. पूरी बात बोलना ऐसे सिंपली एक लाइन में क्वेश्चन नहीं पूछना। वो भी तो करप्शन की वजह से ही है ना। अब कुछ अगर देखिए क्यों नहीं उनके उधर गवर्नमेंट को पैसे नहीं सप्लाई होते, बट वहाँ पे तो उसको गवर्नमेंट को चैलेंज कर दीजिए जो अगर पैसे पैसे रेट वो लिमिट करप्शन कर रही है, क्योंकि पीछे से गवर्नमेंट पैसे दे रही है, आगे वो आपको वो नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है। हाँ तो इलेक्शन इसलिए होते हैं, सिर्फ अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट चूज करने के लिए होते हैं ना। ऐसी जगह जहाँ पे बंदे नहीं पहुँचते वैसी जगह, क्योंकि जैसे पहाड़ हो जाए जो अब तो बकरवास जाके बोल रहे हैं कि मेरे को नेटवर्क चाहिए, वो तो नहीं मिलता। जैसे बकरवास बुजुर्ग वगैरह होते हैं, वो भी एक जगह जहाँ पे अगर वो 5 या 3 साल अगर उधर रहें तो वो जगह उनको मिल जाए, गवर्नमेंट उनको रहने के दे देती है, उनको भी फैसिलिटी तो चाहिए ना, उनको रोड चाहिए। नहीं, अगर कहीं पे सोसाइटी होगी है तो उसे अगर फैसिलिटी ऑटोमेटिक मिलेगी गवर्नमेंट की। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अगर तुम न्यू विलेज एक बना रहे हैं, अच्छी सोसाइटी है, तो अगर तुम गवर्नमेंट को बोले हो तो ये फैसिलिटीज देंगे। जैसे लेकिन ये अगर उनकी तुम बोले corruption- कि मैं अगर उस फैसिलिटी में ये होगा कि corruption आ जाए तो- मैं जा रहा हूँ कैंप के लिए, कोई फैसिलिटीज चाहिए अब, बट मैंने बोला 3 या 4 इयर्स के लिए, तो वो अभी कभी थोड़ी मिलेगी तुझे। मैं भी वही बोल रहा हूँ, अगर कहीं सोसाइटी होगी तो तो क्या भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। क्या 3-4 साल और के लिए 4 इयर्स के लिए 20 इयर्स के लिए होता है। पूरा पॉइंट को अच्छे से बोला, से बात नहीं करी दूसरे साथ, अपना पॉइंट को अच्छे से पूरा उसको लंबा अच्छे से बोलो। हाँ, और अगर बकरवाल में लिटरेट अच्छे खासे हों तो वो जाके कंप्लेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेन कर सकती है, हमारे तो बिजली नहीं आती है वगैरह वगैरह। एक पॉइंट और तो सोच रहे कि जो बकरवाल से गुजर है वो पुअर है, वो पुअर नहीं है, उनके पास तो देखिएगा उनके पास बाइक्स कहाँ से आती है, वो भी है कुछ उनका सोर्स है, कुछ सोर्स ऑफ इनकम, वो भी चाहते हैं वो लिटरेट हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, वहाँ वो उनकी है, वो चाहते हैं कि हम नहीं पढ़ने जाते, वो मतलब अपनी थिंकिंग है उनकी। अब क्योंकि उसके लिए मैं नहीं चाहता। उनमें इतनी सोच नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमको इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता टॉपिक है। से डेविएट तो नहीं हो रहे, टॉपिक से डेविएट तो नहीं हो रहे। चलो वो उनमें इतना वो होना चाहिए ना कि समझ कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो अभी वो मान लें उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, महीने का कितना 10,000 कमा रहे हैं, और उनमें ये समझ होनी चाहिए कि अगर मैं आज अपने बच्चे को 10-15 साल पढ़ा लूँगा और वो अच्छी खासी कंपनी में जॉब करेगा या कोई भी जॉब करेगा तो मेरे को बाद में इसका ज़्यादा प्रॉफिट है। बच्चा पढ़ा लिखा होगा कि बकरवाल के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, मर की बात करो जो नहीं पढ़ाते, तूने वही बोला उनके, और तूने बोला कि घर तक बिजली क्यों नहीं पहुंचती। अब बिजली क्यों नहीं पहुंचती क्योंकि रिलेटेड उनको नहीं पता कि हमारे पास क्या राइट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर कंप्लेन करें। अगर वो पढ़ लिखे उनको सब कुछ पढ़ दोगे, अगर वो फैसिलिटी नहीं उन तक पहुँचते तो कैसे करेंगे, वो अपने राइट्स को कैसे वो करेंगे? फिर वो करप्शन आ गए। बैड गवर्नेंस पे कोई कुछ हो सकता है, बैड गवर्नेंस हो सकता है, द रीजन व्हाई इंडिया इज नॉट डेवलप्ड। बैड गवर्नेंस से क्या हो रहा है, द प्रॉब्लम्स लाइक नक्सलिज्म है ना। बैड गवर्नेंस से क्या होता है, बैड गवर्नेंस से ये हो रहा है कि जो हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली लोगों तक नहीं पहुंच पाई ड्यू टू व्हाट, बैड गवर्नेंस। लाइक इन द ट्राइबल एरियाज द रिसोर्सेज ऑफ द ट्राइबल्स दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, दे आर नॉट गिवन देयर राइट्स टू यूज द फॉरेस्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग पुअर रह रहे हैं, ठीक है, वो अपने खुद के रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते, उनको मार्केट में नहीं बेच सकते, दे आर रिमेनिंग पुअर। बिसाइड उनके ऊपर जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं दे आर फुल्ली एक्सप्लॉइटिंग देम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच नक्सलिज्म भी सपोर्ट है, लोगों के पास पैसा है नहीं, उनका पूरा आपका जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो पूरा एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो अगेन दिस इज गिविंग राइज टू व्हाट, नक्सलिज्म। जो मोस्टली जो टेररिस्ट होते हैं वो लोग कहाँ से आते हैं, वो भी ऐसे आते हैं टू दी पॉवर्टी, ठीक है, उनको भेज देते हैं 20-25 हज़ार के लिए लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए, दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम। सो बैड गवर्नेंस
प्रॉपर फैसिलिटीज आती हैं पर करप्टेड पीपल्स आगे जाने नहीं देते हमारी अपने पास से। और आगे हम तो थोड़ा और हो सकते हैं। ठीक है अपना हेल्थ केयर की वजह से भी डेवलपमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर ऑन एन एवरेज एक घर में एक अकेला इंसान कमाने वाला है और वो बीमार होकर बैठ जाएगा और वो जल्दी नहीं ठीक होता, धीरे धीरे उसकी फैमिली में इफेक्ट करेगा क्योंकि उसके फैमिली के पास पैसे नहीं होंगे खाने पीने के लिए। और अगर एक बीमार इंसान है तो ना ही वो काम कर सकता है, चाहे वो जो मर्जी काम करता हो, चाहे उसका काम मजदूरी का ना भी हो, मतलब ऑफिस का काम भी हो, और वो बीमार हो जाएगा और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो वो भी उसके इफेक्ट करता है इंडियन डेवलपमेंट में डायरेक्ट, क्योंकि अगर एक इंसान की वजह से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है और उसकी हेल्थ केयर अच्छी नहीं मिल रही क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने वो नहीं है कि उसको अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, और प्राइवेट हॉस्पिटल इतने ज़्यादा महंगे हैं कि वो उधर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या ही करेगा वो अपनी हेल्थ को ठीक तो कर नहीं पाएगा। और पहले उसकी फैमिली में इतने इश्यूज चल रहे होंगे क्योंकि वो बीमार है पहले। Casteism is also the issue. And another reason is that the people who cannot मतलब कि जो लोग हैं वो जो सामान खरीदते हैं मतलब कि वो ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज़ का होता है और अपनी कंट्रीज़ का होता है, जिससे कि जो इंडिया की जीडीपी है वो मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम होती है। वो मेन रीज़न ये है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है ही ऐसी कि वो दूसरी कंट्रीज़ को इधर आने का इतना अच्छा मौका देती नहीं है, एमएनसीज़ को इतना मौका देती नहीं कि वो इधर आकर अपना प्लांट सेटअप कर सके। वो हैवी टैक्सेस अप्लाई करती है जिसकी वजह से एमएनसीज़ पहले आने से डर जाती हैं। और इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो कंपनीज इंडिया के डेवलपमेंट के लिए आ रही हैं उनको थोड़ी छूट देनी चाहिए टैक्सेस में ताकि इंडिया डेवलप कर सके। And I think the Indian government should also support the Indian market, Indian industries who are selling their products to their foreign countries. तो जैसे अभी पेट्रोल का रेट है वो भी डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, जो और भी प्लान वो तो करेगा ना, उसको भी अपनी जो जैसे इसमें बोला कि जो बंदा बीमार है उसको मेडिसिन नहीं मिल रही, अगर जिस बंदे ने काम पे जाना हो कहीं दूर जाएगा उसको गाड़ी वगैरह होगी उसको पेट्रोल चाहिए, अगर वो पेट्रोल अफोर्ड करते वो अपने काम पे कैसे जाए। जैसे एक इम्पोर्टेंट आपने बोला कि इन्फ्लेशन का ना महंगाई, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से कंट्री डेवलप नहीं हो रही। हाँ तो उसको और वो हमारी ये रीजन है कि इन्फ्लेशन की वजह से कंट्री डेवलप नहीं हो रही। डायरेक्ट जो जीएसटी कटता है वो आ जाकर हमारी डेवलपमेंट में लगता है, वो कहीं और जाता नहीं है, मगर वो लगता है मगर वो लग नहीं पाता क्योंकि करप्शन होता है। गवर्नमेंट लगाती है। There is religion. We can see that in other countries religion is not such important, but in India there are many such religions like Hinduism, that Muslims and that Sikhism and other many such religions are there. So people think that only our community can grow up. They can't. They think that other community will not grow. Only our community should grow up and we should go more highly and we should मतलब हमें ज़्यादा आगे जाना चाहिए, और हम वो ये सोचते हैं कि जो दूसरी कम्युनिटी है उसको हम नीचे दबा के रखेंगे अपने से। इसकी वजह से जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा दंगे फसाद भी होते हैं, आप देखते हो न्यूज़ में भी मतलब दिखाते हैं। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लाई थी जिसमें क्या होता था कि कुछ सीट हर जगह रिजर्व होती थी स्मॉल कास्ट पीपल्स के लिए, एससी एंड एसटीज के लिए, ताकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले हर जगह पे और उनमें भी डेवलपमेंट आया सब में। मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ। वो तो है कि मतलब रिलीजन के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे तू मुस्लिम है तो तू नहीं जाएगा आगे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे मतलब फाइट्स हो जाती हैं, या फिर जो टेररिस्ट होते हैं वो माना जाता है कि मतलब ये सोचते हैं हम कि वो मुस्लिम से आते हैं, तो ऐसे भी बड़ी लड़ाई हो जाती है मतलब सारे मुस्लिम। Terrorism is not from a single religion. Yes sir, वही बोल They रहा are हूँ। maybe from the Hinduism also. Yes, They are maybe from the Christianity. They are maybe from the Islamic. They are from anywhere, Yes, sir, right? वही You मैं can't बोल say कि particular religion is going for the terrorism, right? ये That is सोच- wrong. ये सोचते हैं लोग कि मतलब वो एक रिलीजन से, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो सभी रिलीजन के हो सकते हैं, जिसकी वजह से बड़ी फाइट होती है। एक ये भी मतलब पॉइंट है जिसकी वजह से इंडिया डेवलप नहीं हो रहा।
there is another point that Samir said that because of religions, yes, that the India is not much very united. Like they do discriminations in On the basis of on the religion. basis of religions. This will be, I think, disappointing. वो इंडियन सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती है। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब आप ही के अंदर हर एक धर्म का, सिख, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सब किस्म के इंसान होते हैं। स्कूल में भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हॉस्टल में मतलब हमारे अलग रिलीजन के, तो मतलब ये थोड़ी तो हर एक से जाके फाइट करना पड़ेगा। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लोग सोचते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोगों की सोच कैसे बदल सकती है? लिटरेटी वो बोल रहा हूँ। तभी बदलेगी। हम सब में पार्टी नहीं हम ऐसी कोई सोच है कि अगर वो क्या बोलते हैं सिख है तो मेरे को उससे बात नहीं करनी है, मेरे को उससे लड़ाई करनी है। अगर वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास वगैरह वगैरह। ऐसा होता है। अभी तुम सब में क्योंकि हम सब लिटरेट है। तुम्हें पता है ऐसा कुछ पॉइंट पुट अप सम पॉइंट। आप बोल रहे हैं वंश, आप लोग कुछ बोले ही नहीं है। बोलो कुछ, बोलो आप कुछ पॉइंट सबको पुट अप करो। देखना नहीं है, पॉइंट पुट अप करो, वहाँ पे बोलना है भाई। जॉइन करना फॉलो नहीं करना। वहाँ पे वो गोली चलाने पड़ेगा तो बस दोस्तों अपना मुंह नहीं खोल पा रहा। नर्वस मत हो, सारे ऐसे ही हैं, सब सीख ही रहे हैं ना। आप भी अपना कुछ पॉइंट पुट अप करो, अपना आप भी करो। काफी सारी चीजें हो सकती है, इससे तो कोई आपको 4 ऑप्शन नहीं दिया कि तो मतलब थिंकिंग लिमिटेड ही रखी है। बट आप जो सुन रहे हो आप उसी के अराउंड बोल रहे हो, आप कुछ अलग सा नया पॉइंट बोल सकते हो। एक चलो दूसरा टॉपिक लेता हूँ, ठीक है? इसके जो भी है मैं चलो होमवर्क दूंगा।